Hello, dear student. I am Professor Gage Sachin Mohan, your diploma chemistry teacher. Welcome all of you in Sanjoni Lecture Management System. So, in the first lecture, in the last class, we started unit number 4, that is metal, alloys, cement, and refractory material. In that lecture, we learn the occurrence of metal. Then, metal and their ores, and the flowchart sheet used in extraction of metal from its ore, as well as some basic terms which are used in a metallurgy, for example ore, mineral, gangue or matrix. In today's lecture we are going to start the metallurgy of your copper directly. But before going to start the metallurgy of copper, I want to highlight some important points related to the metallurgy of your copper, and that point which I am going to highlight is nothing but the flow chart, means the extraction of metal. So first of all, we will get the mineral from the earth crust, and from that mineral we extract the metal in the form of what? In the form of ore. So we extract the ore from the minerals. That ore they are subjected for crushing or pulverization. That is the second step. That is the first step. That is the crushing is the first step. After crushing, that ore is subjected for concentration, or it is also called as the ore dressing. There are the two type of the concentration. First one physical concentration, and the second one is a chemical concentration. Physical concentration involves the three methods. The first one gravity separation, second one magnetic separation, and the third one is your Froth flotation method. Chemical concentration involves the two methods. The first one is calcination and the second one is a roasting. After concentration, that ore is subjected for the production of crude metal called as reduction. Reduction has a three method. The first one is a smelting, second one is the aluminothermic process, and the last one is your electrolysis. You will get the crude metal, and that crude metal is subjected for refining. Refining is the fourth step, and refining can be done by many ways, by many methods. For example, the first one is the pulling, the second one is the liquefaction, third one is the distillation, and the last one is your electrolytic refining, and finally you will get the pure metal. So this is called as the flow chart. Okay, so here I am going to just highlight the important steps in the extraction of your metal over here. Okay, this one, see here. Now you will get ore. Okay, now whatever the ore is obtained, that ore is not suitable for metallurgy, so that's why they are crushed, called as crushing and pulverizing. pulverizing इसका मीनिंग क्या होता है हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है. पल्वराइजिंग, उसके बाद में दैट ओर इज सब्जेक्टेड फॉर कॉन्सेंट्रेशन. Okay, and for copper roasting is applicable. Remember, concentration, roasting is applicable. Okay, so concentration, physical concentration and chemical concentration. In physical concentration we use the method that is called as the Froth flotation. उसके बाद आता है concentration, ठीक है. concentration के बाद आता है smelting, it is the one of the type of reduction. उसके बाद आता है basimerization, that one is a totally new in case of your copper. और उसके बाद आता है refining, and finally you will get the formation of what the pure metal is called as the metallurgy. Okay, so here before going to start the metallurgy of copper, it is a
necessary to know the important ores of copper, and these ores are getting from the earth crust. Okay, so here the first ore of your copper called as the copper pyrite, or it is also called as the chalcopyrite, having the formula CuFeS2. so this one is your तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CuFeS2 ये आपके कॉपर का ओर है कि सल्फर यहाँ पे इसका मतलब है सल्फाइड ओर है। ठीक है, जो Fe है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी इसका मतलब है गैंग और मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद द ओर्स। दूसरा जो ओर है उसको हम बोलते हैं चाल्कोसाइट और कॉपर ग्लांस। उसका जो फॉर्मूला है चाल्कोसाइट और कॉपर ग्लांस का वो है Cu2S। Cu2S अगेन सल्फाइड और उसको हम बोलते हैं कॉपर ग्लांस या फिर चाल्कोसाइट। ठीक है, थर्ड वन इज कॉल्ड एज मैलेचाइट ग्रीन। मैलेचाइट ग्रीन, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीन का तो हमें एक ही और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसको हम बोलते हैं मैलेचाइट ग्रीन। उसका फॉर्मूला है CuCO3 डॉट CuOH 2 times, means carbonate and hydroxide ore called as the malachite ore or malachite green. Then fourth one is called as azurite. Formula is same, only here the proportion is different, 2:1. Now the fifth one called as boronite, or it is called as the peacock ore, and the formula is Cu2S Fe2S3. And the last one oxide ore is called as the cuprite ore, that is your Cu2 ore. Now here if you just see the images on your screen in a PowerPoint presentation, these are nothing but these are nothing but the ores which we are getting from the earth crust. This type of the ores, this one, all these ores are different, their types are different. Okay, so there are the 6 types of different type of the copper ores, they are getting from the earth crust, they are present in the earth crust. But out of that, the most important is your first called as the copper pyrite or chalcopyrite, whose formula is CuFeS2, which type of ore, that is called as the sulfide type of ore, and mostly the copper is extracted from chalcopyrite or copper pyrite. So you have to remember the copper pyrite. Okay, are you getting my point? Now here, move on to the extraction. We are going to start with the metallurgy. Okay, so in a metallurgy, what happened? Just see here, metallurgy. Copper is mainly extracted from its sulfide ore by smelting process. Means इसका मतलब ऐसा नहीं कि उसको डायरेक्टली लेके स्मेल्टिंग में डालने का। ठीक है, तो स्मेल्टिंग के बाद हमें जो भी कॉपर मिलता है तो क्रूड कॉपर होगा, यानी कि स्मेल्टिंग के बाद हमें कॉपर मिलता है, इसलिए वहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट है कि कॉपर इज मेनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फाइड ओर, दैट इज योर कॉपर पायराइट, या फिर उसको हम बोलते हैं CuFeS2 चाल्कोपायराइट या फिर कॉपर पायराइट, दिस इज योर सल्फाइड ओर। एंड कॉपर, ये जो कॉपर है ना, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय स्मेल्टिंग प्रोसेस। ठीक है, नाउ फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो एक्सट्रैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो पहला जो है कॉन्सेंट्रेशन है, उसके बाद आता है रोस्टिंग, रोस्टिंग के बाद आता है स्मेल्टिंग, उसके बाद आता है बेसिमराइजेशन, और लास्ट में आता है रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग के बाद आपको मिलता है प्योर कॉपर। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के स्टेप्स है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। और डिटेल फ्लो चार्ट जो है ना, हमने पहले लेक्चर में या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ लेक्चर मैंने आपको बताया कि ये डिटेल फ्लो चार्ट क्या होता है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर या फिर मेटल का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर में सिंपली
यहाँ पे देखिए सिंपली क्या होने वाला है यहाँ पे, कुछ तो स्टेप्स दिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमें और मिला, कौन सा मिला, मान लो कि कॉपर पायराइट, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉपर पायराइट को कंसीडर किया। सो आई विल गेट द ओर्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, ओके, विच और कॉपर पायराइट, ओके। तो कॉपर पायराइट में जो भी कॉपर है उस कॉपर को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, या फिर मुझे अगर और मिलता है Cu2s यानी कि कॉपर ग्लास की जो कि सल्फाइड ओर है जिसमें कॉपर है, उसको मुझे एक्सट्रैक्ट करना है। तो मेरा पहला स्टेप होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट ओर। तो किसी भी एक ओर को मैं कंसिडर करूंगा और यहाँ पे मैं कॉपर पायराइट को कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो व्हेन वी विल get the ores from the earth crust, they are subjected for the concentration of the ore. Always remember, whenever you will get the ores from the earth crust, that ores they are present in the form of big lumps. बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बिग लम्स बोलते हैं हम इसको। Now that big lumps is not suitable for the further metallurgical process, तो उसको हम ऐसे ही मेटलर्जी के लिए नहीं डाल सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा उसका क्रश, उसको हमें क्रश करना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं क्रशिंग। तो क्रशिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे बाय यूजिंग बिग जॉक क्रशर। तो उसको हमें क्या करना है, क्रश करना है। और क्रश करने के बाद मुझे ये जो बिग लम्स है ना, वो छोटे छोटे स्मॉल पीस में डिवाइड हो जाएंगे ऐसे। यू विल गेट अ स्मॉल लम्स ऑफ योर कॉपर ओर एंड देन दे आर फाइनली पल्वराइज्ड। पल्वराइजेशन का मतलब होता है जो कि स्मॉल पीसेस ऑफ कॉपर ओर है ना, उसकी हम क्या बनाएंगे, पाउडर बनाएंगे ऐसे, लाइक दिस, छोटी छोटी सी। ओके, यू विल गेट द फाइन पाउडर। सो obtaining the fine powder from the small piece of your copper ore is called the pulverization, and pulverization is done by using the ball mill or stamping mill। एक बड़ा सा बॉल होता है कि जो कि धातु से बना होता है, तो उसके ऊपर उसको हैमर करके उस स्मॉल पीसेस को हम कन्वर्ट करते हैं पाउडर में, जिसको हम बोलते हैं पल्वराइजिंग। तो पल्वराइजिंग इज अ कॉमन स्टेप। पल्वराइजिंग क्रशिंग तो होता ही होता है हर एक ओर में, और उसके बाद हम उसका करते हैं कॉन्सेंट्रेशन में हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड हम अप्लाई करते हैं कॉपर ओर को। उसके बाद इसको हम बोलते हैं फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद ये फ्रोथ फ्लोटेशन होने के बाद हम उसको then that ore is subjected for the next step called as the रोस्टिंग करते हैं, हम बोलते हैं ना रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, उस ओर को हम हीट करते हैं भट्टी में। हम लोग ऐसे बोलते हैं रोस्टेड पापड़, रोस्टेड चिकन, लाइक दैट। ओके, रोस्ट यानी कि भुना हुआ, भट्टी में भुना हुआ, ठीक है। तो हम उसको रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग में हमें मिलता है मैटी, उसको हम बोलते हैं कॉपर मैटी, ठीक है। और रोस्टिंग के बाद वी विल सब्जेक्ट दैट ओर फॉर बेसिमराइजेशन, उसका हम बेसिमराइजेशन करते हैं। नो डाउट यहाँ पे रिडक्शन भी होने वाला, रोस्टिंग के बाद रिडक्शन होने वाला है, रिडक्शन के बाद बेसिमराइजेशन होगा, और बेसिमराइजेशन के बाद होगा आपका रिफाइनिंग। दैट वन इज अ कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ योर कॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला स्टेप हम चालू करने वाले हैं। हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं मेटलर्जी ऑफ कॉपर, यानी कि मान लो कि यहाँ पे मुझे कॉपर पायराइट मिल गया, CuFeS2। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओर है, लेकिन किसका, ये हमारा कॉपर का ओर है, Cu का ओर है, कॉपर का ओर है, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े लम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है। सो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ह्यूज पीसेस आर ब्रोकन इनटू द स्मॉल पीसेस एंड पल्वराइज्ड। उसको हम ब्रेक करेंगे स्मॉल पीसेस में और उसकी हम पाउडर बनाएंगे, उसको हम बोलते हैं पल्वराइजेशन।
यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में कि यहाँ पे बहुत सारे जो भी कॉपर पायराइट है विच इज प्रेजेंट in the form of big lumps, huge pieces. They are broken into the small pieces and finally they are converted into the fine powder called as the pulverization. उसको हम बोलते हैं pulverized. ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप है pulverization और that is your crushing और pulverization is very important. ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन में हम देने वाले हैं फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ फ्लोटेशन यहाँ पे कौन सा मेथड एप्लीकेबल है कॉन्सेंट्रेशन का? तो एप्लीकेबल है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या होता है? फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं उसको जूम करके बताऊंगा. ठीक है, अभी सभी को दिखेगा. तो यहाँ पे देखिए डायरेक्टली हम डायग्राम से समझते हैं, थ्योरी के बजाय हम डायग्राम से समझते हैं. ये एक्चुअली डायग्राम है, देखिए बहुत सुंदर दिख रहा है सबको? ठीक है, दिख रहा है. फ्रोथ फ्लोटेशन. फ्रोथ फ्रोथ का मतलब क्या होता है? फ्रोथ का मतलब होता है फ्रोथ फॉर्मेशन यानी कि फोम फॉर्मेशन यानी कि झाग. ओके, तो उसका डेंसिटी होता है कम, इसीलिए वो फ्लोट होता है ऑन द सरफेस ऑफ योर वाटर और लिक्विड. लिक्विड के ऊपर फ्लोट होता है. क्या फ्लोट होता है? फ्रोथ होता है. फ्रोथ यानी कि फोम फ्लोट होता है. सो दैट्स वाई दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस. ठीक है, सो हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेंट्रेशन. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल the first class ore is crushed in a jaw crusher and then finally powder in ball mill and finally screen called as the pulverization. The coarse particles are subject to gravity separation in which the powder ore is made to pass over a wheel so that it fall into the two sections due to the difference in a specific gravity. The finer particles are subjected to the froth flotation method to concentrate the ore. Now in the froth flotation method what happened? First of all, it's a very important to remember the froth flotation process is applicable for concentration of sulfide ore only. ये जो प्रोसेस है ना कॉन्सेंट्रेशन का, ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ये सिर्फ और सिर्फ कॉपर के सल्फाइड ओर के लिए ही एप्लीकेबल है, दूसरे के लिए नहीं. सो दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सल्फाइड ओर. मतलब कॉपर पायराइट CuFeS2 चलेगा क्योंकि ये सल्फाइड ओर है. ठीक है, दूसरा है मान लो कि जिंक का कर रहे हैं हम, जिंक प्लेंट है ZNS, चलेगा फ्रोथ फ्लोटेशन. जिंक के लिए गैलेना यानी कि PB का ओर है PBS सल्फाइड ओर है, चलेगा फॉर PB. या फिर सिनबर है, सिनबर का मतलब होता है मर्क्यूरी सल्फाइड. सो मर्क्यूरी सल्फाइड सल्फाइड ओर है, चलेगा फ्रोथ फ्लोटेशन चलेगा. या फिर निकेल सल्फाइड है, निकेल, यस निकेल सल्फाइड चलेगा. लेकिन यहाँ पे हम मेटलर्जी किसकी देख रहे हैं? तो यहाँ पे हम मेटलर्जी देख रहे हैं कॉपर की. और कॉपर का सल्फाइड और कौन सा है? CuFeS2 जिसको हम बोलते हैं कॉपर पायराइट. ठीक है, बराबर है. तो यहाँ पे हमने कॉपर पायराइट लिया, उसको हमने क्रश किया और उसके बाद हमने उसका कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड. तो यहाँ पे देखिए इन दिस प्रोसेस द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड है. प्रिंसिपल क्या है? दिस प्रोसेस इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंस इन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ओर and the gang particle with oil and water respectively. ठीक है, प्रिंसिपल बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है द कॉन्सेंट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वी आर गोइंग टू रिमूव द इम्प्यूरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद द ओर. ओर के साथ जो भी इम्प्यूरिटी होगी ना, अर्दी इम्प्यूरिटी होगी, रॉगी इम्प्यूरिटी होगी, जो कि ओर के साथ है, उसको निकालने की जो भी प्रोसेस है, जो भी मेथड है, उसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं हम उसको, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सिंपल है। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे ओर है। कौन सा ओर है, ये ओर है, कॉपर ओर। उसके साथ क्या होगा, उसके साथ होगा इम्प्यूरिटी। तो हमें क्या अलग करना है, हमें अलग करना है इस ओर को और इस इम्प्यूरिटी को। तो उसको बाहर निकालो, इम्प्यूरिटी को बाहर निकालो, ओर को सेपरेट करो। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस इन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होगा, डिफरेंस इन वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ओर इज वेटेड बाय मीन्स ऑफ द ऑयल। ये जो ओर है ना, कॉपर ओर, वो ऑयल के साथ चला जाता है। दैट इज द वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर ओर। और जो इम्प्यूरिटी होती है ना, ये इम्प्यूरिटी चली जाती है आपके पानी के साथ, यानी कि वाटर। उसको हम बोलते हैं वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। दोनों का अलग है। ओर का होता है, ओर का वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑयल के साथ होता है, और जो भी इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है उसका वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक वाटर के साथ होता है। यानी कि एक जाता है ऑयल के साथ और दूसरा जाता है पानी के साथ। तो इस तरह से क्या होता है, सेपरेशन होता है। उसको हम बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम समझाऊंगा। ये जो देख रहे हैं ना आपको, ये कॉम्प्रेसर है, कॉम्प्रेसर। और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉम्प्रेसियर को पास करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉम्प्रेसियर है, ठीक है। तो यहाँ से बहुत हाई प्रेशर के साथ यहाँ पे हम कॉम्प्रेसियर को पास करेंगे, ठीक है। तो ये मान लो कि हमारा इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम मान लो कि हमारा टैंक है जिसमें हम प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है। ये नीचे दिख रहा है ना, ये सब ओर है जिसको हमने क्या किया है, जिसको हमने क्रश किया है, क्रश करके डाल दिया है, ठीक है। सो क्रश ओर में क्या होगा, और भी होगा और इम्प्यूरिटी साथ में ही होगा, और भी है इम्प्यूरिटी भी, ठीक है। और उसमें हमने ऐड किया, क्या ऐड किया है, तो यहाँ पे देखिए वाटर कंटेनिंग पाइन ऑयल। तो इसमें क्या है, इसमें वाटर भी है और वाटर के साथ हमने ऑयल को भी ऐड किया है। ऑयल कौन सा ऑयल है, पाइन ऑयल है। जैसे कोकोनट ऑयल होता है ना, जैसे पाइन ट्रीज, एवरीबडी नो द पाइन ट्रीज, learn in a geography. So from that, whatever the oils which is obtained from the pine trees is called as the pine oil. जैसे कि कोकोनट से हमें जो भी ऑयल मिलता है उसको हम बोलते हैं कोकोनट ऑयल। सोयाबीन से मिलता है तो उसको हम बोलते हैं सोयाबीन ऑयल, बराबर है। या सनफ्लावर ऑयल जो कि हम निकालते हैं सनफ्लावर से, लाइक दैट पाइन ऑयल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, आपका ओर है वाटर एंड पाइन ऑयल। तो यहाँ पे देखिए when we in this method what happen, in this method finally powder sulfide ore is mixed with water and pine oil, and the whole mixture of the ore, water and pine oil is then stirred vigorously by passing compressed air through it. Now the oil forms a froth with air bubble. तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, तो उसमें यहाँ पे ओर है और यहाँ पे सब मिक्सचर है, वाटर प्लस पाइन ऑयल। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कॉम्प्रेस एयर पास करते हैं। तो कॉम्प्रेस एयर पास करने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसका विगरस मिक्सिंग हो जाता है, विगरस मिक्सिंग हो जाता है। और विगरस मिक्सिंग होने के कारण जो पाइन ऑयल है ना, तो उससे बनता है फ्रोथ, जिसको हम बोलते हैं फोम, झाग बोलते हैं, फ्रोथ विथ ईयर बबल्स। और यहाँ से ऐसे बबल्स निकलना शुरू होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। नाउ ऑन द basis of principle and the wetting characteristic, sulfide or particle get attached added with the froth। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ओर है उसका वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक किसके साथ है, ऑयल के साथ। लेकिन ऑयल का क्या बन गया, फ्रोथ, यानी कि झाग बन गया। तो सभी और पार्टिकल जो है वो झाग के साथ, यानी कि आपके फोम के साथ अटैच होने वाले हैं, एडर होने वाले हैं, ठीक। तो झाग हल्का होता है, एज वी नो दैट द फ्रूट इज अ लाइटर, सो दैट्स व्हाई इट फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ दैट वाटर। तो झाग हल्का होता है, उसका डेंसिटी बहुत कम होता है, तो ये वाटर के ऊपर ऐसा बनता जाता है, उसके ऊपर बनता जाता है, ठीक है। सो हियर as we know that the froth is lighter, so it float on the surface, while the impurity which are present in a water
बिकॉज इम्प्योरिटी इज वेटेड बाय मीन्स ऑफ वाटर। तो इम्प्योरिटी किसके साथ है, तो वाटर के साथ है। तो वाटर यहाँ पे नीचे है, क्योंकि वाटर का तो झाग नहीं बनेगा, झाग किसका बनेगा, ऑयल का बनेगा, जो कि ऊपर जाएगा क्योंकि उसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो यहाँ पे जो भी झाग है फॉर्म है उसमें क्या है, तो ओर है। और वाटर में जो वाटर के साथ वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है उसमें क्या है, आपका इम्प्योरिटी है। बराबर है, ठीक है। सो हियर द इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ टैंक। यहाँ पे जो भी बॉटम है, ये टैंक का जो भी बॉटम है, तो यहाँ पे सब इम्प्योरिटी यहाँ पे कलेक्ट होने वाली है। और ऊपर जो भी है यहाँ पे आपका कॉपर ओर कलेक्ट होने वाला है। द फ्लोटिंग फ्रोथ इज देन ट्रांसफॉर्म इनटू द सेटलिंग बेसिन फ्रॉम वेयर बाय फिल्टर प्रेस कॉन्सेंट्रेटेड और इज रिकवर्ड। तो इस झाग को हम निकाल लेंगे, फिल्टर पेपर पे डालेंगे, फिल्टर पेपर को प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या होगा, आपका जो भी फोम है, झाग है, वो निकल जाएगा और आपको सिर्फ मिलेंगे झाग में अटैच हुए कॉपर ओर। उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर ओर। और नीचे जो इम्प्योरिटी होगा ना, उस इम्प्योरिटी को हम क्या करेंगे, उस बॉटम से निकाल लेंगे, उस टैंक की जो कि बॉटम है उस बॉटम से निकाल लेंगे और आगे के प्रोसेस के लिए डाल देंगे। इस सब को हम बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड क्या है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। तो यहाँ पे हम सिर्फ फिजिकल कॉन्सेंट्रेशन मेथड ही स्टडी करेंगे। फॉर टुडेज लेक्चर this content is sufficient. I hope you understand all the concepts regarding the the concentration of your sulfide ores. So for today's lecture this one is enough. Thank you for watching today's lecture. We will meet in the next lecture with the chemical concentration of your copper ore. Till then, goodbye.